Hey, hi everyone, welcome back to the channel. Janu this side, and I hope you are doing well. So, welcome to yet another long form video. And as you have read by the title, this is going to be your college 101 guide. So, without wasting much time, let's get started into the video. But before that, there's a small announcement that I'll be posting twice a week, which is on Sunday and Wednesday. So, stay tuned and do not forget to subscribe to my channel and do share it with your friends. And if you're starting the college this year, this might be the savior for you. So without any further ado, let's get started. Okay. So before getting into the video directly, let me introduce myself. So if you have been following me, you might know. But if you're new, so hey, I am Janvi. I am 20-year-old kid. I call myself a kid because I feel like a kid. So I am a 20-year-old kid. I am currently in my third year. I have given my exams and I'll pass, of course. And soon in a month, I'll be in my third year. So after surviving college for 2 full years, I have this video, a 15 or 20-minute 101 guide video, which will help you survive your college. So let's start. I have my content written on my phone. So without any further, let's start with you. So the very first point is you are going to college for networking. The very first point is networking. Network with a lot of people. Don't feel कि मैं extrovert हो जाऊंगा, so what will people think? I should stay introvert. अगर तुम introvert भी हो, try and connect because college एक ऐसी जगह है जहाँ पे you will meet people from across the country. अलग अलग state से लोग आएंगे in your college. So it is a very good time for networking and it is very good opportunity. So I've written here is don't be afraid to talk to new people. New people means new opportunity. The more you network, it will benefit you in the future a lot. So if I talk about myself, I am an extrovert. So it was not that tough for me to talk to new people. At times, it even gets tough for me. So if you are introvert, try and make a few friends, but networking will be the key. Networking will help you till the end. The next point is join clubs or societies. So in the very first year of my college, I joined Commerce Society. Being a commerce student, I joined Commerce Society and NSS. Then after realizing that I should not say no to more clubs and I should like get involved in various clubs and activities, in my second year I was in 5 clubs. I'll attach a photo here with my 5 badges. I was in Fabulous 50, which was director sir's favorite, like 50 kids of director's favorite. Then I was in placement cell, then I was in alumni cell, I was in commerce society, and I was in Sakshatkar club. So I joined 5 clubs of my college and trust me, it helped. Though sometimes it was a bit chaotic, मेरी classes और 2 club के even clash होना, but trust me, this is how you learn time management. ये तो कुछ भी नहीं अभी जाकर के if you will join corporate or even government job, तुम्हें job environment और तुम्हें काम कैसे करना है, you will learn a lot with practical experience and trust me, clubs वगैरह join करना will be much helpful. The third is attendance matters a lot. So in my first sem, I totally attended all the classes. My attendance was 95% and above in all the 4 subjects and all the 4 periods. But from second semester, I like joined a few clubs and NSS वगैरह join कर लिया था मैंने. So I was a bit involved there, or that harmed my attendance a lot. So since the very first day, keep a check on your attendance too, because attendance matter at the end. Like it matters a lot at the end. The next, make notes from day one. So don't take पढ़ाई too lightly. College is not going to be a Karan Johar movie. मैंने अपने last video में भी बोला था, college life करण जौहर की मूवीज में कुछ और है और रियल में कुछ और है. तो पढ़ाई डे 1 से करो. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि जैसे तुम स्कूल में पढ़ाई करते थे कि रोज आके पढ़ रहे वैसा पढ़ो, बट या तो वीकेंड्स छोड़ दो या तो वीकडेज छोड़ दो. अगर तुम वीकडेज में नहीं पढ़ो तो वीकेंड्स में लाइक 2 to 4 to 5 आवर्स पढ़ो, या फिर तुम वीकेंड्स छोड़ दो और वीकडेज में जितना भी पढ़ा रहा है कॉलेज में उसका एक चेक रखो, बिकॉज एग्जाम की एक रात पहले पढ़ाई तो होती है. मतलब इसमें तो कोई वो नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई होती है और एग्जाम्स भी होते हैं, पास भी हो जाते हैं लोग. पर इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, स्टार्टिंग से पढ़ाई करो. मेक नोट्स फ्रॉम डे 1, मेक क्वालिटी नोट्स एंड या पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लेना प्लीज.
नेक्स्ट इज डोंट स्किप ओरिएंटेशन. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होंगे, डू अटेंड दोस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स. इट हेल्प्स अ लॉट to be familiar with the college. So I didn't attended library ka orientation program, I still remember, and I got to know it about in second year कि हमारे library के भी awards होते हैं, the one who goes library the most. तो मैं first year में गई होंगी, but I was unaware of the fact that there are awards or something like that. तो एक बार you must attend orientation of every department, like every whatever orientation programs are happening in your college, do attend them. Next up is keep your ID and documents ready for the first few days. So अभी तुम्हारा CUET या whatever your 12th has ended, तो अब keep your 10th की marksheet, 12th की marksheet and domicile, Aadhaar card and few very vital documents ready with 5-10 copies at your home. और सबके bunches बना लो, staple them, और ऐसे बना लो कि ये पूरा सेट है. ऐसे सेट के कम से कम आराम से 10 सेट बना लो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस. और नहीं कर रहे हो तो भी मतलब 5-7 सेट बना के रेडी रखो. इट कम्स इन वेरी हैंडी, क्योंकि जब भी कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा यू विल डायरेक्टली सबमिट इट. ऑल्सो बी वेरी एक्टिव ऑन योर कॉलेज पोर्टल स्टार्टिंग में, बिकॉज हाँ, जैसे हमारे कॉलेज में ना कुछ भी नोटिस आता नहीं ऐसे लिखा हुआ जैसे स्कूल्स में आता था. तो पोर्टल पे थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. सी व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स हैपनिंग. तो पोर्टल पे एक्टिव रहो एंड प्लीज लाइक मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर अप टू डेट. जैसे कि मेरा डोमिसाइल ही रेडी नहीं था, मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, मेरा डोमिसाइल रेडी नहीं है. तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना. जो भी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है वो एक बार फुलफिल करके रखना अपनी. सो द नेक्स्ट अप इज डोंट स्पेंड ऑल योर मनी इन द फर्स्ट मंथ. तो मैं तो अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, आई डोंट गेट पॉकेट मनी. बट इफ यू आर गोइंग टू हॉस्टल, अपना फर्स्ट मंथ में ही पूरा पैसा नहीं उड़ाना है. लाइक कीप अ बजट ट्रैकर. मेरी डायरी हाँ मुझे दिख नहीं रही है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड बजट ट्रैकिंग. तो वन साइड यू राइट ऑल द एक्सपेंसेस एंड अदर साइड यू राइट ऑल द इनकम्स, और लाइक वाइस वर्सा. तो जो भी पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यू गॉट 5,000 रुपीज, वेयर इट इज गोइंग. मुझे पता है पेटीएम, फोन पे सब पे हिस्ट्री होती है, पर ट्रस्ट मी जब तुम मर्चेंट के नाम स्क्रॉल करोगे, अरे ये पैसे कहाँ उड़ा दिए, तो तुम्हें याद भी नहीं आएगा. इट्स बेटर टू कीप अ रिकॉर्ड ऐसे फिजिकली बाय योर हैंड, नोट्स बना के लिखो. एंड प्लीज मेंटेन अ बजट, क्योंकि थोड़ा सा पीयर प्रेशर में आके हम ज्यादा उड़ा देते हैं, वो नहीं करना है हमें. योर फोन और लैपटॉप एंड अ टोट बैग. ओके, so your phone and laptop are going to be your best friend and of course your bag. तो मैं अगर अपना बैग दिखाऊंगी कभी तो मेरे सबसे आगे वाले पॉकेट पे कॉलेज का आईडी, कोचिंग का आईडी, मेरे कॉलेज के सारे बैजेस, मेरा वेस्लिन का वो लिप थेरेपी, एक स्क्रंची, एक क्लिप और एक क्लचर पड़ा मिलेगा. फिर नेक्स्ट में आते हैं हम. तो सामने मेरे पास एयरपॉड्स होंगे, मेरी वाटर बॉटल, लंच वहाँ पे आता है, मेरी छोटी मोटी 2-3 डायरी पड़ी होंगी. उसमें फिर रिकॉर्ड्स में आता है, उसमें मेरे कभी-कभी क्लोज रहता है, उसमें मेरा परफ्यूम रहता है, पेपर सोप रहता है. फिर उसके बाद उसमें मेरी पूरी बुक्स रहती है, मतलब पढ़ाई वाली और सारा स्टेशनरी एंड ऑल. और फिर साइड पॉकेट्स में मेरे एक में प्याज एक साइड पॉकेट में मेरी प्याज रहती है ताकि मुझे लू ना लग जाए. और इधर पे मेरे कुछ कॉइन्स रहते हैं. ऐसे मेरा टोट बैग और मेरा बैग पूरा अरेंज रहता है. तो एक गुड क्वालिटी बैग ले लेना अपने कॉलेज जाने से पहले. नेक्स्ट कम्स इन अ लैपटॉप एंड अ फोन. फोन एंड लैपटॉप कम्स वेरी हैंडी कॉलेज में. तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, चिल करने के लिए, मूवीज देखने के लिए, सबके लिए दोनों डिवाइसेस काम आएंगे. सो मेक श्योर थोड़ा स्पेस खाली करके यू गो टू कॉलेज. The next is don't compare your journey with others. So I have never done this in my college at least. मतलब मैंने अपनी जर्नी, जैसा मेरा कॉलेज जर्नी चल रही है, वो I have never compared to someone else. क्योंकि अगर तुम कंपेयर करोगे तुम्हें कुछ ना कुछ हमेशा कम दिखेगा. Even I know few people watch my reels, my videos and like वो नेगेटिविटी समझ आती है उनके फेस से, तो वो नहीं करना चाहिए. इंस्टेड यू शुड सपोर्ट देम. लाइक अगर कोई कुछ कर रहा है तो प्लीज सपोर्ट देम इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग जेलस. एंड प्लीज दिस विल हेल्प यू अलॉट. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन बिकॉज यू माय डियर आर द बेस्ट. नेक्स्ट इज एंजॉय स्मॉल थिंग, कैंटीन चैट्स, चाय ब्रेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मेरे कभी रील देखना, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरी जितनी भी कॉलेज की रील्स होंगी ना, हमने सब लाइक कैंटीन में या मिड ब्रेक्स में बनाई होंगी. इट इज वेरी वेरी फन. लाइक तुम क्या कर रहे हो, सब अपनी रील स्क्रॉल कर रहे होंगे अगर कोई ब्रेक चलेगा. इससे बेटर है तुम दोस्तों के साथ बैठो. हमने इतने ऊनो खेला है. मेरी कभी हाईलाइट देखना इंस्टाग्राम की, उसमें तुम्हें हर दूसरा स्टोरी ऊनो का मिलेगा. हमने सेकेंड सेम में पूरा ऊनो ही खेला है. जब भी हमें ब्रेक्स मिलते थे हम ऊनो ही खेलते थे. तो दिस इज व्हाट विल लाइक दिस इज व्हाट यू विल रिमेम्बर
जैसे मुझे याद है कि मैं और छवि वन ऑफ माय फ्रेंड हम बहुत चीटिंग करते थे, लाइक वो हमेशा जीत जाती थी और वो मेरे पत्ते ले लेती थी ताकि मैं भी जीत जाऊं। तो these are small cute random memories that you will like cherish for lifelong. So please like romanticize like 5 minutes break. नेक्स्ट अप इज सिट इन फ्रंट वंस अ वाइल। तो मैं तो हमेशा ही फ्रंट में बैठती हूँ, बट प्रोफेसर्स की नजरों में भी अच्छा होना चाहिए हमें, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कौन से प्रोफेसर तुम्हें काम आ जाए। प्रोफेसर सारे ही अच्छे होते हैं, तो एक बार कभी ना कभी वंस इन अ वाइल आगे जरूर बैठना एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद प्रोफेसर्स। यू नेवर नो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द प्रोफेसर, because they are elder from us, they are teaching there, so of course they have a lot of knowledge more than us, so like connecting with them helps a lot. Next up is so we are done. Now I have a few points on my mind. So first is connecting with seniors, or connect with your seniors. It will help a lot in terms of papers, notes, advices and networking. मान लो कि उनकी कहीं job लग गई and you are in very good terms with them, so they might refer you somewhere. First of all, second of all, seniors आर दी बेस्ट। तुम्हारे साथ वालों से तुम्हारी उतनी जमेगी जितने तुम्हारे सीनियर से जमेगी, क्योंकि सीनियर्स पता नहीं एक बॉन्ड बन जाता है सीनियर्स के साथ यार। सो आई वुड से कि सीनियर्स थोड़ा बहुत नेटवर्किंग शुरू कर दो। द नेक्स्ट आई वुड से इज if you are like okay showing your face on social media, please do film yourself. मेरी पूरी कॉलेज लाइफ पोर्ट्रेड है मेरे YouTube और Instagram में. Even if I don't get famous one day, I'll sit when I'll be 30 or 35 and I'll watch my random college stories, college vlogs, and I guess that will make me happy. So if you are not even camera friendly or you're camera shy, प्राइवेट अकाउंट बना के प्राइवेट में पोस्ट करो, बट डू कैप्चर योर कॉलेज लाइफ. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट कम्स इन, तो फर्स्ट ईयर से ही प्लीज स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स, और सेकेंड ईयर onwards start thinking about your career. So for the first year I dedicated it to the skills, and from the second year I started preparing for my future. The first year is for preparing for skills, soft skills. फर्स्ट ईयर में जान लगा दो सारी स्किल्स सीखने में. ऑल्सो डू इंटर्नशिप्स. मैंने फर्स्ट सेम से ही इंटर्नशिप की, और मैंने पेड इंटर्नशिप की. मैंने अभी सेकेंड ईयर में पेड इंटर्नशिप की, एंड अब थर्ड ईयर में देखते हैं क्या होता है. बट सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर लाइक स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन स्किल्स. मैंने टेली का कोर्स किया था विच हेल्प मी इन गेटिंग अ पेड इंटर्नशिप. तो ऐसा कभी भी नहीं कि तुम्हें थर्ड ईयर में आके ही इंटर्नशिप मिलेगी. तो मैंने टेली में इंटर्नशिप की थी, और मैंने टेली का कोर्स फर्स्ट ईयर में किया था. दो टेली मेरा सब्जेक्ट थर्ड ईयर में, बट मैंने फर्स्ट ईयर में उसका कोर्स किया. आई हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इट. आई अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप एंड आई गॉट दैट इंटर्नशिप. इट पेड मी 6,000 per month, which was not bad, I guess, according to the place where I live in and according to the college I study in. It was quite decent amount. So start investing on your skills, start doing courses, and if the last would be stick to a hobby. एक hobby बना लो, और please don't stop doing it, because at times when there are no friends, no people, your family is not around, you'll feel bored, you'll feel depressed. That hobby will help you. So my hobby is vlogging and making content, and I love doing it. But there are times when I feel like I don't want to like take out camera and shoot myself. There are days, but there are days when I love to like sit in front of camera and speak and endlessly say something, जैसे मैं अभी कर रही हूँ. So make a hobby of yours and stick to it. So this was your 101 guide. अगर मुझे कोई और पॉइंट याद आता है, वैसे तो मैंने काफी सोच समझ के ही ये वीडियो बनाया है, बट मुझे अगर कोई और पॉइंट याद आता है, I'll make sure to add it to the pinned comment. Do not forget to like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, bye.